Hello everyone, this is me Schuyler. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you my certified CA Foundation Law paper, the same paper that I had written. I had called for the certified copies, and in today's video I'm going to discuss about a few key points which will benefit you and it would help you increase your marks. So as you can see the paper, this is question number 1. Here in this exam I started solving question number 2 first, and hence I kept a few pages at the start so that I can write question number 1 later on. Since I was not confident in writing question number 1 first, I wrote question number 2. This is question number 2. Now comes question number 3. This is question number 6, and at the end I'm going to show you how much marks did I get in each section. So this is the overall mark statement. So in question number 1 I got 13 marks out of 20. This was the question I did the last, question number 1. Question number 2 was, which I did the first, in that I scored 16 out of 20 marks. In question number 3 I got 18. I didn't attempt question number 4. Then I got comparatively less marks in question number 9 out of 20, and question number 6 I got 14 out of 20. So the first point is that you should start with your most strong question. And what do I mean by the most strong question? जब आपको 15 minutes का reading time मिलेगा, then you have to see all the questions that are there from question number 2 to question number 6. आपको question number 1 नहीं पढ़ना है. As I told you, question number 1 is compulsory. चाहे आपको आता हो या चाहे आपको ना आता हो, वो आपको solve करना ही पड़ेगा. So it makes no sense in reading question number 1. So you read question number 2 to question number 6 properly. Each and every question, कभी कभी एक क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स भी होते हैं, तो आपको उसको भी पढ़ना है. And then now you have to decide which questions do you know the strongest. आपको प्रायोरिटी में उसको ऑर्डर करना है कि हाँ, मुझे पहले क्वेश्चन 3 आ रहा है या क्वेश्चन 2 आ रहा है या क्वेश्चन 5 आ रहा है. And then in that order you have to start writing the answer, your answer paper. मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था. I left some pages. If you want you can do that, or else you can start your answer paper with question number 2 directly also. But for that you need to use your reading time very very cautiously. आपको ये सोचना कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है. Now coming to the type of questions that are asked in the exam paper, there are mainly the maximum marks for any question is 7 marks. Okay, so these 7 mark questions आपको ध्यान से पढ़ना है, especially if it's a case based question. This is a question where one certain para will be given और उसके basis पर आपको एक question पूछेंगे. Then a certain part or a condition will be changed in that same para जो आपको दिया होगा of that question, and आपको ऐसा पूछेंगे, will your answer remain the same or will it change? For example, अभी जो मेरे question paper में आया था, Sony, a friend of Priya, wanted to buy a motorcycle. Priya agreed to sell the two-wheeler, and it was decided that the price of the two-wheeler will be fixed by Priya's father, who is an auto dealer. Priya immediately handed over the keys to Sony. However, Priya's father refused to fix the price as he did not want Priya to sell her vehicle. Priya expressed her inability to sell
the two-wheeler to Sony and asked for the return, but Sony refused to return the same. Explain. Can Priya take the vehicle back from Sony? And will your answer be different if Priya had not handed over the vehicle to Sony? तो आइए देखते हैं मैंने क्या आंसर लिखा था इसमें. ये क्वेश्चन नंबर 2A है. क्वेश्चन नंबर 2A. This is the question that I had started writing first. क्वेश्चन नंबर 2 है. ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है. तो इसमें जो 3 कंडीशंस है, जो प्रोविजन पहले बनता है आपको वो लिखना है, प्रोविजन लिखना है, फिर आपको फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है. ये याद रखना कि फैक्ट्स ऑफ द केस विल जस्ट बी अ शॉर्ट समरी, शॉर्ट क्रिस्प समरी. आपको इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. इट शुड बी लाइक 4 to 5 लाइन्स बस. फैक्ट्स ऑफ द केस के लिए इतने मार्क्स नहीं होते, बट आपको स्टिल ये लिखना है. इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, फॉर द सेक ऑफ अ फॉर्मेलिटी यूर राइटिंग. आपका कंक्लूजन पहले वो लोग पढ़ेंगे. सो मैंने लिखा, इन लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रिया कैन नॉट टेक बैक a vehicle from Sony. She can only recover a reasonable sum of money from Sony. But if Priya had not handed over the keys of the vehicle to Sony, she would have had the possession of the vehicle with her. And since the condition of her father to fix the sale price was not concluded, the agreement between Sony and Priya could be avoided. So Priya would not be liable to sell her vehicle to Sony if she had not handed over the vehicle. तो आपको ऐसा लिखना है. तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना. 7 मार्क के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं. इसमें 2 चीज़ें पूछेंगे, स्पेशली इफ इट्स केस स्टडी बेस्ड. आपको ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो नाउ गोइंग टू द प्रेजेंटेशन. आपको पता है कि आपको पहले प्रोविजन लिखना है. हम लोग सेक्शन नंबर पे बात करेंगे कि आपको लिखना है या नहीं लिखना है इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. टिल देन आप ये सुनो कि प्रोविजन आपका सही होना चाहिए और प्रोविजन के बाद आपका कंक्लूजन सही होना चाहिए. ये दो चीज़ों के लिए ही मार्क्स है. फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने के लिए ज़्यादा कुछ मार्क्स नहीं है. तो आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने में टाइम वेस्ट मत कर देना. आपको सिर्फ प्रोविजन सही से लिखना है, फैक्ट सही से लिखना है. हाँ, प्रोविजन आप जितना मॉड्यूल से उठा सकते हो, जितना मॉड्यूल के लैंग्वेज में लिख सकते हो, जितना मॉड्यूल के की जो कीवर्ड्स है उतना आप अपने प्रोविजन में लिख सकते हो. आपको उतने मार्क्स मिलेंगे. लोग कहते हैं कि खुद के वर्ड्स में लिखना है, एंड आई एग्री, खुद के वर्ड्स में लिखना है, बट मॉड्यूल के जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी लिखना है. For example, in this case, goods are sold by one party on the condition that the price will be determined by a third party and he fails to do so. The contract becomes void. ऐसे जो भी प्रोविजन हैं वो आपको लिखना है. ये 1% कम, ये तो थियोरी क्वेश्चन है. ये भी थियोरी क्वेश्चन है. हाँ, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है. When a partnership has been formed for a fixed time period, it's called partnership for fixed duration. It can be continued till the time period stated in the agreement. Also, the partners of a firm can put a suit for dissolution in the court for dissolving the firm in case of perpetual losses. तो आपको वो केस पढ़ के आपको क्या लग रहा है, कौन सा प्रोविजन लगना चाहिए, आप वो लगाओ और फिर उसके हिसाब से सही कंक्लूजन देना. एग्जामिनर पहले आपका कंक्लूजन पढ़ेगा और उसके बाद आपका प्रोविजन पढ़ेगा. तो कंक्लूजन सही होना चाहिए. नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर्स, आई थिंक दिस इज द वन प्लेस where a majority of the students fail, and this is the major reason why students fail. It's because of section numbers. लोग सेक्शन नंबर या तो लोग करेक्ट सेक्शन नंबर लिखते हैं और प्रोविजन ठीक से नहीं लिखते, या तो लोग प्रोविजन ठीक से लिखते हैं बट सेक्शन नंबर ठीक से नहीं लिखते. अगर आप दोनों ठीक से नहीं लिख पा रहे हो, देन फोकस मोर ऑन राइटिंग द करेक्ट प्रोविजन. सेक्शन नंबर इज जस्ट फॉर इम्प्रेसिंग द एग्जामिनर कि हाँ मेरे को आता है, बट अगर आपका प्रोविजन ही सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो होता है फ्रॉड, पर उसमें आपने कुछ और लिख दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में लिख दिया, तो आपको डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलेगा. 0 नहीं मिलेगा, मतलब प्रोविजन के मार्क्स तो काट लिए जाएंगे. अगर आपका कंक्लूजन सही है तो आपको कंक्लूजन के मार्क्स मिलेंगे. सो फोकस ऑन राइटिंग द राइट प्रोविजन
rather than the right section number. सेक्शन नंबर के इसमें मत बह जाना कि मैंने सही सेक्शन नंबर लिखा है. योर प्रोविजन शुड बी करेक्ट. दैट इज द पॉइंट. एंड आई एम टेलिंग माई केस. मैंने कहीं पर भी क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी एक जगह को छोड़ के कोई सेक्शन नंबर नहीं लिखा है. एंड दैट वन प्लेस इज गवर्नमेंट कंपनी विच इज देयर इन दिस सेम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हाँ ये है. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी वाला क्वेश्चन था. मुझे सिर्फ ये वाले का सेक्शन नंबर पता था, सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. मैंने बाकी कोई दूसरा सेक्शन नंबर नहीं पढ़ा था और ये आया इसलिए मैंने ये लिखा. अगर ये नहीं आता तो मैं ये नहीं लिखता. सो फोकस ऑन द प्रोविजन rather than the सेक्शन नंबर. वरना अगर आपने ये नहीं किया, गलत सेक्शन नंबर या गलत प्रोविजन लिख दिया, तो इंस्टीट्यूट आपको वापस 4 महीने के बाद बुलाएगी लॉ में पास होने लॉ के लिए. रिमेंबर दिस, लॉ में पास होने के लिए सिर्फ आपको 40 मार्क्स चाहिए. एंड इट्स नॉट दैट हार्ड. मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो 35 पे अटक जाता है और बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखा है जो 45 50 रह जाते हैं. उनके नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट बस कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर सेक्शन नंबर गलत लिख के आ जाता है, जिसकी वजह से उनको वापस रीअटेम्प्ट करना पड़ता है. डोंट मेक दिस मिस्टेक. अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाओ, गलत सेक्शन नंबर मत लिखो. एंड नाउ आई एम कमिंग टू द टाइम मैनेजमेंट. सो आपने अगर मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है, डोंट मेक दीज मिस्टेक्स, तो आप वो वीडियो देखो. उसमें मैंने एक टाइम मैनेजमेंट का एक अप्रोच बताया, दैट आई कॉल द आर अप्रोच. नाउ द सेकंड अप्रोच इज व्हाट आई कॉल द क्वेश्चन अप्रोच. सो फॉर अ 7 mark क्वेश्चन you should spend maximum of 12 to 13 minutes on that question. For a 4 mark question you should spend maximum of 6 to 7 minutes on that question. तो आपका ऐसा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए 12 से 13 मिनट मैक्सिमम, 4 मार्क के लिए 6 से 7 मिनट मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो. उससे ज़्यादा मत करो वरना पेपर छूटेगा. एंड यू नो, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर लिख के हुआ ही नहीं है, if only you have completed 70 marks, then scoring even 50 becomes a big problem. So अगर आप ज़्यादा मार्क्स का लिखोगे तो your chances are higher. And I'm going to put this paper in the description down below so that you can check it. और मैं ICAI का suggested paper भी डालूंगा so that आप लोग ये चेक कर सकते हैं. Thank you. This was all from my side. Bye. Please subscribe to my channel and like this video.